Very good afternoon to all of you. I, Dr. Hemant Saluja, on behalf of CGHS and the organizing team, welcome you to the next in line series of our webinars titled Insulin in Diabetes. As you all know, diabetes is a very prevalent condition, which is a non-communicable lifestyle disease in India. India is also known as the diabetes capital of the world. We have an ever growing, expanding population due to lifestyle and other genetic and racial factors that predisposes us to diabetes. And today we have Dr. Professor M.K. Lal, who's a senior consultant and professor in the Department of Medicine at Safdarjung Hospital, who shall be telling us and educating us on the use of insulin in diabetes. Diabetes has various presentations. Most of it usually is controllable. However, if long-standing uncontrolled diabetes occurs, then one is predisposed to the systemic side effects of diabetes, which can affect one and all systems of the body, right from the brain, eyes, heart, kidneys, and even nerves. And it also has effect on our functioning of the brain and memory. So to have a better control of diabetes, usually we take the help of lifestyle, diet modifications, and oral drugs, but sometimes one needs to be on injectable medications. Insulin is one among them. And Dr. N.K. Lal will be teaching us, educating us, and telling us more about the use of insulin in diabetes. Over to you, Professor Lal. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Am I audible, sir? Yeah, loud and clear, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Good afternoon. Today we have a very interesting topic and a very important topic, insulin in diabetes. और जितना इंसुलिन से पेशेंट्स डरते हैं, शायद हम डॉक्टर्स भी उतना ही डरते हैं. So it makes this topic much more interesting for the patients and the doctors, for both of us. So I'll be restricting my talk only to insulin and not to diabetes. So going ahead, first we must know what is insulin. Insulin है क्या और उसकी हमारे शरीर में क्या जरूरत है? Right from the 1890s and 1880s, scientists all over the world knew that there was one organ, pancreas, which I think you can see just below the stomach, this yellowish organ. And the scientists knew that this organ had something to do with the glucose control of the body. Now, how did they know this? What they did was they took out the pancreas from a dog and they saw that the blood sugar levels increased very high, very quickly in these dogs, and they died within a couple of days. So they knew that there is something coming out of the pancreas, but they were not sure कि वो क्या चीज है which is controlling the blood sugars. So further अगर हम इस pancreas को अगर हम और बड़ा करके देखें under the microscope, we see that this pancreas is made up of basically two types of cells, alpha cell और beta cell. अब जो इंसुलिन आता है वो बीटा सेल से आता है और अल्फा सेल से एक और केमिकल आता है जिसे हम ग्लूकागोन बोलते हैं. द फंक्शन ऑफ दीस टू अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे क्या है. तो अभी हमने जैसे आपको बताया कि अल्फा और बीटा सेल से ग्लूकागोन और इंसुलिन सिक्रीट होता है हमारे पैनक्रियास से. सो व्हाट इज द रोल ऑफ दीस टू केमिकल्स? आई विल कॉल देम एज केमिकल्स फॉर जस्ट टू मेक इट थिंग्स सिंपल. So when the blood sugars are high, when the patient has high blood sugars, maybe after a meal, the pancreas starts secreting or releasing insulin. And this insulin works on the level of the liver, on the level of muscles and fats, and it has various functions by which it ultimately leads to a decrease in the blood sugar levels. And the body tries to maintain the blood sugar levels to around about 80 to 110 milligrams per deciliter. Now, what happens when the opposite occurs? Suppose the patient is starving or is on fast. So there is no supply of food or glucose. अब इसके अंदर the pancreas comes to rescue again.
So when you are fasting, the pancreas now, instead of releasing insulin, it starts to release glucagon. And what does glucagon does? Glucagon does exactly the opposite of what the insulin was doing over here. So यहाँ पर the insulin was making the body use glucose and decrease the glucose levels. यहाँ पर glucagon is releasing the stored glucose in the body and trying to increase the blood sugar levels to the normal levels. So basically, the insulin and glucagon act in totally different directions. Discovery of insulin is very interesting. Before insulin was discovered in around about 1921, or anyone who was diagnosed as diabetes, especially type 1 diabetes, well, that was almost a death sentence, and the patients could not survive within beyond few weeks or few months, and maybe some years if the patient is very lucky. So slowly and steadily, as scientists came to know that pancreas is involved in the sugar control, so they started to extract they started to try to extract the chemical which is insulin from pancreas. Initially, what they did was they mashed up the pancreatic tissues, made a paste, and tried to inject this crude paste in patients or dogs and other animals, but that was quite unsuccessful until these two gentlemen, Benting and Best. Now, these two gentlemen are credited with the discovery of insulin. And if we see this picture, we see in दोनों scientists के साथ there is another fellow over here which has an equally important role. So that is why this fellow over here, this dog, is also in this picture. What Benting and Best did was they somehow purified the pancreatic extract or the chemical, and in 1921 they injected this crude preparation for the first time in a 14-year-old patient, लियोनार्ड थॉमसन. और जैसे ही लियोनार्ड थॉमसन को इंसुलिन का ये इंसुलिन क्रूड इंसुलिन जो कि क्रूड पैनक्रियाटिक टिश्यू था एक तरह से, जब उसको इंजेक्ट किया गया, हिज ब्लड शुगर स्टार्टिंग कमिंग डाउन. एंड इन हिस्ट्री दिस इज द फर्स्ट patient who was treated, and this patient survived for many years on this crude pancreatic preparation. And it was also in history that this was the shortest time between a discovery of a molecule and the award of the Nobel Prize. So this molecule insulin was discovered in 1921, और सिर्फ 2 साल बाद Benting and Best received the Nobel Prize for insulin. Now 2021, especially last month, this July, was very important because last month we celebrated 100 years of insulin. So this is a very important year, 2021, as we celebrate 100 years of insulin discovery. As I told you, initially क्या होता था, they extracted a very crude preparation from the pancreas of the dog. Now because they found it successful, they thought, all right, now we need it in a much level, in much higher quantities. तो उन्होंने क्या करा, instead of dogs, they chose cows. So they used pancreas of the cows. Later on, they shifted to the pancreas of the pigs. Now the two problems which they were facing when they were using beef or pork pancreas was, number one, the quantity was limited. There was a huge number of diabetic patients who were requiring insulin, and the insulin requirement could not be fulfilled by the number of cows in the pig pancreatic insulin available. और दूसरी जो problem थी, that was allergic reactions. Because this was not from a human source, so a lot of patients had allergic reactions when they were injected with this type of insulin. So until around about 1980s, we were using porcine insulin. Until 1980s, scientists discovered that we can manufacture insulin in the laboratory using a bacteria called E. coli, and that was called a recombinant insulin. And that almost opened up a new phase or new era of insulin, in which we could have unlimited supply of insulin without a lot of allergic reactions. Now, as I said earlier, कि हमारी बॉडी में
इंसुलिन रिलीज कब होता है? व्हेन वी हैव अ मील, जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारी बॉडी या पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करती है। तो क्या हमारी बॉडी या इंसुलिन पूरे दिन इंसुलिन रिलीज करती रहती है, या सवेरे करती है, या शाम को करती है, या रात को करती है? तो उससे समझने के लिए हम देखेंगे कि जो हमारी बॉडी की टोटल इंसुलिन रिक्वायरमेंट है 24 घंटे की, 24 आवर, तो बॉडी उसे दो तरह से रिलीज करती है पैनक्रियाज। एक तो थोड़ा थोड़ा 24 घंटे में हमारी पैनक्रियाज थोड़ा थोड़ा इंसुलिन रिलीज करती रहती है, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट स्लो रिलीज। तो थोड़ा थोड़ा इंसुलिन रिलीज होता रहता है 24 घंटे, 24 आवर्स। और जब हम खाना खाते हैं, व्हेन वी हैव आवर मील्स, द पैनक्रियाज रिलीजेस बोलसेस और large quantities of insulin to counteract the glucose which will be released from the food. तो अगर हम 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो हमारी बॉडी एक तो बेसल इंसुलिन रिलीज कर रही है थोड़ा थोड़ा, और 3 बार जो हम खाना खा रहे हैं, इस ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो ये जो लाइन है, ये लाइन वो है जो हमारी बॉडी 24 घंटे थोड़ा थोड़ा इंसुलिन रिलीज कर रही है। और ये ब्रेकफास्ट, ये नाश्ता किया, उसके बाद ये नाश्ता किया, इसके बाद बॉडी ने इंसुलिन रिलीज किया। फिर इसके बाद दोपहर हो गई, दोपहर में लंच किया, वी हैड द लंच, द ब्लड शुगर्स आर गोइंग अप एंड सो इज द इंसुलिन लेवल। और फिर डिनर, डिनर के बाद फिर हम देखेंगे कि जैसे ब्लड शुगर ऊपर जाती है, ब्लड शुगर जो ये वाइट जो देख रहे हैं आप ग्राफ, जैसे ब्लड शुगर ऊपर जानी शुरू होती है इंसुलिन रिलीज शुरू हो जाती है। तो हमारी बॉडी में एक तरह से देखा जाए तो 3 बार हमारी पैनक्रियाज लार्ज क्वांटिटीज में इंसुलिन रिलीज करती है, और थोड़ा थोड़ा पूरे दिन 24 घंटे में स्लो रिलीज करती है इंसुलिन। अब हम ये सोचेंगे कि हमारे पास इतनी सारी दवाइयां हैं, गोलियां हैं, तो हमें इंसुलिन की जरूरत क्या है? Well, there are some conditions in which the patients of the diabetics cannot be controlled on oral OHAs, that means oral drugs, और उन मरीजों को हमें इंसुलिन देना पड़ता है, स्पेशली टाइप 1 डायबिटिक्स। आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि डायबिटीज 2 तरह की होती है मोस्टली, और भी तरह की होती है, लेकिन हम 2 ही तरह की बात करेंगे। एक होती है टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज जिसे हम बोलते हैं, जो कि काफी जल्दी 20-25 साल तक डायबिटीज हो जाती है, उनमें नॉर्मली टाइप 1 डायबिटीज होती है। और टाइप 2 डायबिटीज होती है जो 25-30 साल के बाद मरीज में आती है। तो ये देखा गया है कि जो मरीज की उम्र कम है, 15 साल 20 साल, उनमें अगर डायबिटीज होती है तो वो गोलियों पे कंट्रोल नहीं होती, उन्हें इंसुलिन शुरू से ही देना पड़ता है, और लाइफ टाइम इंसुलिन ही देना पड़ता है। दूसरी कैटेगरी है पेशेंट्स जिनको हम गोलियां दे रहे हैं 2-2, 3-3, 4-4, लेकिन हम शुगर नहीं कंट्रोल हो रहा, तो उनमें भी हम इंसुलिन दे सकते हैं या देना पड़ता है। तीसरा कैटेगरी है, सपोज किसी पेशेंट की सर्जरी होनी है और शुगर्स कंट्रोल होने हैं, तो उनमें हम इंसुलिन दे देते हैं। पेशेंट्स जिनके किडनी खराब हो गई है, उनमें दवाइयाँ काफ़ी हद तक नहीं दे पाते हैं हम काफ़ी दवाइयाँ, तो उनमें इंसुलिन ही देना पड़ता है। और पांचवी कैटेगरी है, अगर किसी डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत सिवियर इन्फेक्शन हो जाए, स्पेशली अगर आईसीयू में एडमिट है, और 2 कंडीशन जिसको हम डीके और एचएसएस बोलते हैं, जिसकी हम डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगा, तो अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को ये कंडीशन होती है तो इनमें हमें इंसुलिन से ही उनका उपचार या इलाज करना पड़ता है। अब जो लोग इंसुलिन पर हैं, वो उन्हें शायद पता होगा कि हमारे तरह तरह की इंसुलिन होती है। डॉक्टर लिख देता है ये वाला इंसुलिन और वो वाला इंसुलिन, तो आप सोचते होंगे कि इंसुलिन में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो जैसे हमने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले, their body releases a slow constant release of insulin 24 आवर्ली, 24 घंटे हमारी बॉडी जो है थोड़ा थोड़ा इंसुलिन रिलीज करती है। तो उसको मैच करने के लिए हमारे पास है एक स्लो रिलीजिंग इंसुलिन। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? एनपीएच। अब एनपीएच काफी हद तक हम यूज नहीं करते हैं, पुराना हो गया, अब हम यूज, अब नए इंसुलिन आ गए हमारे पास। तो काफी मरीज जो आप इंसुलिन पे हैं, शायद आप पहचान पाएंगे अपना इंसुलिन, इसमें नाम होगा शायद लेंटस होगा, ग्लैरिटस, टूजियो, लेविवीर, ट्रेसिबा। और दूसरा जो इंसुलिन हमने बोला था कि जब हम खाना खाते हैं तो पैनक्रियाज हमारी एक थोड़ा सा इंसुलिन एक्स्ट्रा रिलीज करती है जब हम ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्विक एक्टिंग इंसुलिन है, जिसे हम ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं। मरीजों को शायद अपना इंसुलिन इसमें दिखाई दे जाएगा, एक्ट्रैपिड, नोवारैपिड और एपिड्रा। तो ये 2 तरह के बेसिकली इंसुलिन है, एक बेसल जिसे हम बोलते हैं बेसल इंसुलिन, और एक रेगुलर इंसुलिन। अब इंसुलिन देना कैसे है? अब कई मरीज हैं, सोचते हैं, कई बार हमारे पास मरीज आते हैं, वो कहते हैं अरे डॉक्टर साहब आप तो हमें 2 इंसुलिन 2 इंजेक्शन दे रहे हैं, उस मरीज को तो हमारे पड़ोसी को 1 ही इंजेक्शन लग रहा है, आप मुझे 4 दे रहे हैं,
मेरा जानकार है उसे तो 2 इंजेक्शन लग रहे हैं। तो हर मरीज का अलग अलग अपना एक सिस्टम है शरीर का, और हर मरीज अलग है। तो हम कोई भी 2 मरीज एक से नहीं होते। तो हो सकता है किसी मरीज को 1 इंजेक्शन की जरूरत पड़े, और हो सकता है किसी को 2, और कभी कभी 4 इंजेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन ये किस तरह इंसुलिन दिया जाता है, कैसे हम इसका फैसला करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो हम जब शुरुआत करते हैं इंसुलिन की, हम कोशिश करते हैं टू स्टार्ट विद टू मेक it easier for the patient also. Suppose the patient is already on oral hypoglycemic drugs, मतलब वो दवाइयों पर ऑलरेडी है और उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तो ऐसे मरीजों हम क्या करते हैं, एक सिंगल इंसुलिन बेड टाइम पर एक बेजल इंसुलिन दे देते हैं जो 24 घंटे काम करता है। तो इस पेशेंट को अपनी दवाइयां जो है वो लेते रहते हैं, और साथ में रात को सोने से पहले, रात को खाना खाने के बाद एक 24 घंटे एक्ट करने वाला 24 एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग बेजल इंसुलिन दे देते हैं। अब सपोज दिस पेशेंट डज नॉट गेट कंट्रोल विद 1 सिंगल बेजल डोज ऑफ इंसुलिन, तो उसमें हम नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, तो ये बेजल इंसुलिन है, उसके साथ वी ऐड अनदर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। इसे हम बोलते हैं बेजल प्लस। बेजल तो हमारा हो गया, प्लस क्या है, दिस प्लस इज दिस रैपिड इंसुलिन जो हमने दे दिया। अब सपोज इस पे भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो हमें जाना पड़ता है नेक्स्ट स्टेप जिसे हम बोलते हैं बेजल बोलस। दिस इज द बेजल बोलस रेजिम, जिसके अंदर अगेन वी हैव 1 डोज ऑफ बेजल। अगर आप देखेंगे इन तीनों रेजिम्स में, इन दिस ऑल 3 रेजिम्स वी हैव 1 डोज ऑफ बेजल, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर these basal insulins act round the clock, they act for 24 hours. So we just need to give 1 injection of basal no matter what regime we are following. And then in these patients in the final category we also have to give 3 rapid insulin doses with matching with the breakfast, lunch and the dinner. तो अगर आपको याद होगा इन द जो पीछे 2-3 स्लाइड पहले आई टॉक्ड अबाउट द नॉर्मल रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी। अगर आप देखेंगे बिल्कुल इट मैचेस द नॉर्मल रिलीज ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी, 1 बेसल एंड 3 रैपिड इंसुलिन टू मैच विद द राइजेस इन ग्लूकोज विद द मील इनटेक। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको एक बेसल इंसुलिन देना है, then you have to give 1 with breakfast, then with lunch and then with dinner, so that makes it a total count of 4 injections per day. So that is very cumbersome for the patient and very difficult for the doctor also to convince. तो अब इसका solution क्या है, we don't want the patient to take 4 injections, the patient doesn't want to take 4 injections, so the scientists thought alright, let us find a way out. So what is the way out, what they did was चलो मिला देते हैं, let's mix things up. So what they did was they mixed the rapid acting and the basal insulin. तो उन्होंने थोड़ा रैपिड एक्टिंग डाल दिया एक इंजेक्शन में, थोड़ा इंसुलिन डाल दिया और इसको बोल दिया प्रीमिक्स। प्रीमिक्स क्योंकि हमने मिक्स करा 2 तरह के इंसुलिन, हमने रैपिड और बेसल 2 इंसुलिन वी मिक्स्ड एंड इट इज प्री, मतलब प्री ऑलरेडी जो ऑलरेडी मिक्स्ड है, पहले से मिक्स्ड है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्री मिक्स इंसुलिन। सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो आप अभी हमें सुन रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग 2 इंजेक्शंस पर डे, most probably you will be taking a pre-mix insulin, that is a 30-70 इंसुलिन। तो इसके अंदर फायदा क्या है, इसमें फायदा ये है कि पेशेंट को सिर्फ 2 ही इंजेक्शन लेने पड़ते हैं एंड इट कवर्स मोस्टली द बेजल, और आपका जो खाना खा रहे हैं तीनों टाइम वो भी कवर हो जाता है। हालांकि दिस रेजिम इज नॉट बेटर देन द बेजल बोलस, बट इट इज much convenient for the patient and pretty much controls the blood sugar levels over 24 hours. अब एक कंफ्यूजन जो पेशेंट्स में बहुत देखा है, हमने देखा है, लॉट ऑफ पेशेंट्स कम टू अस, दे डोंट नो, उनको कंफ्यूजन ये होता है कि उनको सिरिंज डिफरेंटली, सिरिंज कौन सी यूज करनी है, वाइल कौन सा है, कई बार डिफरेंट सिरिंज के साथ डिफरेंट वाइल्स यूज कर देते हैं एंड दे आर नॉट श्योर, रादर उन्हें पता ही नहीं होता कि अलग अलग सिरिंजेस आर मेंट फॉर डिफरेंट इंसुलिन। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेशेंट्स हमारी इंसुलिन ले रहे हैं दे शुड बी वेरी केयरफुल। अगर आप देखेंगे, आई विल ओनली टॉक अबाउट 2 इंसुलिन जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। आई विल टॉक अबाउट इंसुलिन 40 यूनिट्स, वी कॉल इट अ U40। व्हेन आई से U40, इसका मतलब ये है कि ईच ml 1 ml ऑफ दिस इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 40 यूनिट्स। सो हर ml में 40 यूनिट ऑफ इंसुलिन है, और इसका एक कोड होता है, कोड रेड है। अगर आप देखेंगे इस ढक्कन, इस बोतल का ढक्कन जो है वायल्ट्यूल का इज रेड इन कलर, और जब आप उसके साथ में जब आप सिरिंज लेने जाएं केमिस्ट से, तो बी श्योर उसका कैप भी रेडी होना चाहिए। तो U40 वाइल के साथ आप सिर्फ U40 सिरिंज ही यूज करेंगे, दूसरी कोई नहीं करेंगे। अब दूसरा कौन सा है, U100। एक जो दूसरा इंसुलिन है वो U100। U100 का क्या मतलब है,
U100 means that each ml of U100 insulin consists of 100 units of insulin. तो पहले वाला जो इंसुलिन था उसमें 1 ml consists of 40 units, और this one is 1 ml consists of 100 units. So this is a very concentrated form of insulin. And अगर आप इसका कोड देखेंगे तब वाइल्ड कोड जो ऊपर है ऊपर ऑरेंज कलर का है, और इसका जो इंसुलिन सिरिंज आप यूज करेंगे उसका भी जो ढक्कन, द कैप इज ऑरेंज. So please be careful. I'll just go back to the slide again. Red cap has to match the red cap over here, and the orange cap over here has to match the orange cap over here. Now we have newer methods जिसे हम insulin pens बोलते हैं. So insulin syringes are maybe a talk we अभी बात कर रहे हैं, but we don't now use it, and most of our patients, CGHS patients, are using pens. अब इनका फायदा क्या है इन पेन्स का? पेन्स का फायदा यह है कि दे आर लेस पेनफुल, दे आर मच मोर एक्यूरेट देन द सिरिंजेस एंड लेस कम्बरसम. तो अगर आपको कहीं जाना है, आपको सीधा जैसे पेन आप पॉकेट में लेके जाते हैं कहीं भी, आपको पेन अपनी जेब में रखना है, एंड यू कैन टेक इट एनीवेयर. यू डोंट नीड सेपरेट सिरिंजेस, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, एंड सो दिस इंप्रूव्स द पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी एंड कंप्लायंस. लेकिन there are some precautions which you must take while using a pen. Number one, use the correct pen for the particular insulin. All different insulins do not fit, the cartridges do not fit into all types of cartridge in the pen. हर insulin cartridge अपने ही pen में fit होगा. So please be sure कि आपका जो pen और जो insulin है वो same है. ऐसा ना हो कि वो उसमें fit तो हो जाए लेकिन वो डोज गलत देना शुरू कर दे. Never share your pen with anyone because that carries a risk of infection. घर में अगर आप इसको रख रहे हैं तो keep it in the refrigerator section, जो नीचे वाला सेक्शन है फ्रिज का, नॉट इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट. जब आप इसे यूज करेंगे तो आप उसको हाथ के बीच में रोल करेंगे ऐसे 8-10 बार, ताकि जो उसके अंदर जो इंसुलिन दवाई है वो मिक्स हो जाएगी. जो नीडल्स हैं, नीडल्स अलग अलग तरह की आती है, लेकिन आप 4-5-6 mm नीडल्स तक ही यूज करेंगे, और कोशिश ये कीजिएगा कि 3 या 4 बार से ज्यादा नीडल को यूज ना करें, और उसके बाद उस नीडल को चेंज कर लें. अब एक और जो कंफ्यूजन होता है कि इंजेक्शन कहाँ लगाया जाए और कैसे लगाया जाए. इसमें मैं कहना चाहूंगा, द फेयर ऑफ इंजेक्शन इज मोर पेनफुल देन द इंजेक्शन इटसेल्फ. अगर आप इंसुलिन इंजेक्शन की बात करेंगे या पेन की बात करेंगे, तो इसमें जो दर्द होता है या सुई का जो है वो बहुत ही कम होता है. ज्यादातर लोग, मुझे याद है, आई एम श्योर, वो कंपेयर करते होंगे जब हम लोग अपना ब्लड सैंपल देते हैं उसमें जो दर्द होता है उसके साथ कंपेयर करते होंगे. लेकिन अगर आप सुई देखेंगे इंसुलिन पेन की, वो बहुत ही बारीक होती है, बहुत महीन होती है. तो वो जो आपको सैंपल लिया जाता है वो बहुत मोटी सुई होती है, तो उस तरह का दर्द नहीं होता. तो इसमें हम लोगों के बीच में डर ज्यादा है, और असल में डर ज्यादा है और दर्द बहुत कम है इसमें. आप कहाँ लगा सकते हैं इंजेक्शन? आप यहाँ लगा सकते हैं पेट में, यहाँ पर लगा सकते हैं थाई में आगे की तरफ, और हाथों के ऊपरी हिस्से में लगा सकते हैं. कैसे इंजेक्ट करना है? चूज एन इंजेक्शन साइट, इंसर्ट द एंगल इनटू द स्किन एट 90 डिग्रीज. प्लीज ये आप ध्यान से देखिएगा. देखिए जो इंसुलिन सिरिंज है वो सीधे खड़ी है, इट इज स्ट्रेट, इट इज नॉट एट एन एंगल, एकदम स्ट्रेट डाल रहे हैं. पुश द प्लंजर, प्लंजर मतलब ये जो है, पुश इट ऑल द वे, और उसके बाद 5 तक गिनती कीजिए, गिनिए मन में, 1 2 3 4 5. टेक द निडल आउट एंड दैट इज इट. बस हो गया आपका. इतना आसान है इंजेक्शन लगाना. ये आप खुद ही कर सकते हैं, और आपको किसी डॉक्टर, नर्स, पड़ोसी, घर वालों की किसी की कोई जरूरत नहीं है. एक बार फिर दोबारा मैं आपको कहना चाहूंगा, ये तो हमने देखा कि कैसे लगाना है. अब स्किन जो होती है ना वो कैसे उठानी है. अक्सर मैंने देखा है people use the whole hand, whole of the fingers and the thumb to lift the skin. उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि आपके नीचे की जो मसल है वो भी उठ जाती है. You are raising the muscle, and sometimes when you inject the needle, the insulin is deposited into the muscles, जो कि हम नहीं चाहते. तो only use your thumb and your index finger. सिर्फ इन 2 उंगलियों को आपको यूज करना है, ताकि जो मसल है वो ना उठे, और आपके जो स्किन है, जो फैट है, जो चिकनाई है, उसी में सिर्फ सिरिंज जाए और यहीं पर इंसुलिन जमा हो. Now what are the problems when we give insulin? एक तो है पेन एट लोकल साइट. वेल मैंने जब बताया, द नीडल इज वेरी फाइन,
तो पेन बहुत ही थोड़ा है, बहुत हल्का पेन होता है, पता भी नहीं चलता। दूसरा प्रॉब्लम है हाइपोग्लाइसीमिया। वेल, हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे पेशेंट से ज्यादा डॉक्टर डरता है। तो इसके अंदर इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि नेवर इंजेक्ट मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ इंसुलिन। जितना डॉक्टर ने बोला है आपको उतना ही इंसुलिन इंजेक्ट करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। एक अभी हमारे पास पिछले हफ्ते एक मरीज आए थे, मरीज वो आए नहीं थे, लाए गए थे, बिकॉज उन्होंने क्या करा, व्हाट दे डिड वाज, द पेशेंट डिड वाज ही फॉरगॉट हिज मॉर्निंग इंसुलिन। तो रात में उन्होंने क्या करा, तो उन्होंने अपना मॉर्निंग और इवनिंग का इंसुलिन ऐड करके रात को उन्होंने अपने आप को इंजेक्ट कर दिया इंसुलिन, एंड ही वेंट टू हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में का मतलब होता है शुगर बहुत डाउन हो गई। तो ऐसा कभी ना करें, अगर आपकी सुबह की डोज मिस हो गई है तो उसे रात की डोज में ऐड ना करें। अब थर्ड प्रॉब्लम लाइपोडिस्ट्रोफी, जो पहले हुआ करती थी, नाउ वी डोंट सी लाइपोडिस्ट्रोफी। नाउ व्हाट इज लाइपोडिस्ट्रोफी इज, ये देखेंगे आप, ये देख रहे हैं, ये दिस इज लॉस ऑफ फैट एट द इंजेक्शन साइट। तो अगर आप एक ही साइड पर बार बार इंजेक्शन इंसुलिन लगाते रहेंगे तो यहां पर क्या होता है, वी लूज द फैट, और इसे बोलते हैं लाइपोडिस्ट्रोफी। और दूसरी जो प्रॉब्लम है जो कि ज्यादा देखी जाती है वो होती है लाइपो हाइपरट्रॉफी। अब पहले क्या हो रहा था कि पहले पिक्चर में हमने देखा देयर वाज लॉस ऑफ फैट, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, देयर इज प्रोलिफरेशन ऑफ फैट, फैट जमा हो गया यहाँ पर, तो यहाँ गांठें बन गई है। तो दोनों ही कंडीशन जो है हमें नहीं चाहिए। दोनों यहाँ पर भी देखेंगे आप इस फोटो में, देयर इज डिपोजिशन ऑफ फैट एट द thighs because the patient has been injecting at the same site again and again, leading to hypertrophy of this adipose tissue, fat cells. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? इसका सॉल्यूशन ये है कि एक जगह पर कभी भी इंजेक्शन बार बार ना लगाए। इफ यू आर इंजेक्टिंग अराउंड द अम्बलाइकस, तो आप उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड दिस एरिया इनटू 4 पार्ट्स। पहले दिन यहाँ लगाइएगा, दूसरे दिन यहाँ, तीसरे दिन यहाँ, चौथे दिन यहाँ, फिर यहाँ पर जो नंबर आएगा 5th डे, 6th डे, 7th डे, यू कैन कीप रोटेटिंग। और अगर आप पैर में लगाना सुविधाजनक समझते हैं तो आप इसको भी 4 हिस्सों में बांटिएगा। 1 2, अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने 1 और 2 अलग अलग पैर पे किया है, 1 और 2 एक ही पैर पे नहीं है। तो फर्स्ट on this leg, second on this leg, third and then fourth, then fifth, sixth. So that is how you will rotate. So by rotation, what will happen, जो आपकी लाइपोडिस्ट्रोफी और लाइपर हाइपरट्रॉफी की जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होगी। अब इंसुलिन रखना कहां पर है? नेवर फ्रीज। जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी फ्रीजर कंपार्टमेंट जहां पर आप बर्फ जमाते हैं ऊपर वाले हिस्से में, वहां पर आपको इंसुलिन नहीं रखना है बिल्कुल भी। अगर वो जम गया है, गलती से ने किसी रख दिया उसको, प्लीज उसे गर्म करके और पानी बना के उसको दोबारा यूज मत कीजिएगा, उसको फेंक दीजिएगा, वो खराब हो गया इंसुलिन। एक्सपायरी डेट जरूर चेक कीजिएगा जब भी आप इंसुलिन यूज करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि रोज उसको देखें, रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार उसे देखिएगा कि एक्सपायर इंसुलिन तो नहीं है। गर्मियों में धूप के अंदर मत रखिएगा उसको। जब भी आप इंसुलिन यूज करते हैं, whenever you use insulin, before insulin usage, just have a look at the insulin, is it clear? कोई उसके अंदर कोई पार्टिकल्स तो नहीं फ्लोट कर रहे। अगर आपको लगता है, if you see some clumps or if you see some white particles, please do not use that. जैसे मैंने बताया, फ्रिज को रेफ्रिजरेटर सेक्शन में रखेंगे आप 2 to 8 डिग्रीज में, प्रेफरेबली अराउंड व्हाट एवरेज 4 to 5 डिग्रीज में। आपने जब इंसुलिन खोल लिया है उसके 3 महीने तक वो ठीक है, आप यू कैन यूज इट टिल 3 months अगर आप उसको यूज करके फ्रिज में रख रहे हैं। लेकिन अगर फ्रिज की सुविधा नहीं है, जैसे हमारे गांव में रहने वाले भाई बहन हैं, तो अगर आप घर में रख रहे हैं तो आप उसको फिर भी 1 महीने तक आप उसे यूज कर सकते हैं, उसके बाद उसको आप फेंक दीजिएगा। अब आगे इंसुलिन तो हमने बताया कि जैसे 100 साल हम मना रहे हैं इंसुलिन का। अब आगे और क्या है, आगे कुछ और है इंसुलिन में? हाँ बिल्कुल है। अब आने वाला है कुछ सालों में वंस वीकली इंसुलिन। तो जो मरीज और जो डॉक्टर डरते हैं इंसुलिन 2 इंजेक्शन, 3 4 4 इंजेक्शन से, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 1-2 साल में होपफुली वंस वीकली इंजेक्शन आने वाला है, जिसको नाम दिया गया है आइकोडेक। और ये देखा गया है, जो अभी phase 2 स्टडीज हो चुकी है इसके बारे में, एंड इट हैज बीन सीन कि वंस वीकली इंजेक्शन ऑफ दिस इंसुलिन इज एज गुड एज वंस डेली इंजेक्शन जो हम बेजल देते हैं। तो द स्टडीज आर वेरी गुड एंड वेरी प्रॉमिसिंग। एंड अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो जो 52 इंजेक्शंस आपको लगाने हैं, इससे लगाने हैं,
तो दैट विल रिप्लेस द 365 इंजेक्शन जो आप रोज लगाना पड़ता है बेजल का। तो इमेजिन कीजिए 365 इंजेक्शन की बजाय आपको सिर्फ 52 इंजेक्शन लगाने हैं पूरे साल में। तो आई थिंक ऑन द 100th एनिवर्सरी ऑफ इंसुलिन दिस इज अमेजिंग न्यूज। और जैसा कि मैंने आपको बताया दिस इंसुलिन माइट बी अवेलेबल बाय 2023। So that is a very good news for all the patients and all our physicians. So I will stop my talk on insulin right now because I want to dedicate a lot of time on questions. I'm sure there will be a lot of questions from our respected audience and participants. I open this for discussion and questions. थैंक यू डॉक्टर लाल, इट वाज रियली एजुकेशनल, बहुत बहुत ज्ञानवर्धक वक्तव्य था आपका। जैसा कि देखा गया है कि इंसुलिन सीजीएचएस डिस्पेंसरी से लोग लेके जाते हैं। भारत में गर्मी भी काफी पड़ती है गर्मियों के मौसम में, तो हमारा सुझाव ये है कि जब आप इंसुलिन अपनी कलेक्ट करने आते हैं तो अक्सर तो हमारी चेष्टा ये रहती है कि हम आपको आइस पैक में साथ में लगा के दें, परंतु अगर आइस पैक भी हमारे लिमिटेड होते हैं तो हम ये आपसे आग्रह करते हैं कि जब आप लेने आए तो अपना थर्मस या आइस पैक या थर्मोकोल उसमें बर्फ डाल के साथ लेके आए जब गर्मियों में लेने आए, इसलिए कि वो आप सुबह आएंगे और शाम को जाएंगे ऑफिस साथ लेके, तो जब तक आप घर जाएंगे तब तक वो इंसुलिन खराब ना हो जाए, क्योंकि भारत में रूम टेम्परेचर माना गया है 56 डिग्री फ़ारेनहाइट से 89 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 15 डिग्री से 30 डिग्री तक को रूम टेम्परेचर का एक ब्रैकेट दिया गया है। अगर इस पे रहता है तो 28 दिन तक, जैसा प्रोफेसर लाल ने बताया, आप रख सकते हैं, और वो 1 महीने तक ही रख सकते हैं। पर ये एक प्रोटीन रसायन है, तो जैसे अभी आपने अंडा उबाला और फिर फ्रिज में रख दिया तो अंडा वापस ढीला नहीं होता, उसी तरह अगर ये एक्सट्रीम हीट में चला गया इंसुलिन, तो फिर उसके बाद जितना मर्जी आप इसको फ्रिज में रख लें, फिर ये वापस अपने इफेक्टिवनेस को नहीं प्राप्त कर पाता, तो वो फिर खराब हो जाता है। इसलिए आग्रह ये है कि जब भी इंसुलिन लेने आए गर्मियों में, तो साथ में कुछ ऐसी व्यवस्था साथ लेके आएँ जिससे कि ये ठंडे-ठंडे में आपके फ्रिज तक घर में पहुँच जाए, जब तक कि जिसके लिए ये उद्देश्यित है लगाना, उसको ठीक तापमान पे, ठीक अपनी एफिशिएंसी के साथ ये काम कर पाए। दूसरी चीज़ ये कि बुजुर्गों में देखा गया है अक्सर कि लोग इंसुलिन पहले लगाने की सलाह देते हैं, परंतु बुजुर्गों में ये होता है कि कभी-कभार वो पूरा खाना नहीं खा पाते। तो मेरा निजी सलाह ये है, मुझे पक्की उम्मीद है प्रोफेसर लाल भी इससे सहमत होंगे, कि बुजुर्गों में खाना खाने के तुरंत बाद लगा लें, कि कभी जैसे उनका मन नहीं करता, खाना पूरा खाया जाता है या कुछ भी कारण हो जाता है, तो अपनी डोज़ के हिसाब से फिर वो ओवर करेक्शन हो जाती है। ओवर करेक्शन का मतलब है कि फिर इंसुलिन की वजह से शुगर नीचे गिरने का डर रहता है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जब भी शुगर का स्तर 70 से नीचे जाता है, उसको टेक्निकली हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो वो उसमें फिर ठंडे पसीने आना, कन्फ्यूजन होना, बेचैनी होना, फोकस ना कर पाना, कई बार पैरालिसिस जैसी भी मिमिक करने लगती है सिचुएशन। तो वो ऐसे ना हो, तो इसलिए सुझाव ये है कि जो बहुत बुजुर्ग हैं या बीमारी की हालत में, वो तुरंत खाना खाते ही इंसुलिन लगाएँ, खाने से पहले ना लगाएँ, जब तक आपको पक्का नहीं पता कि आपने एक मात्रा का खाना खाना है। जैसे ही ठीक हो जाएँ, फिर अपने पुराने रेजिम पे दोबारा से आ जाएँ। Sir, I'll just add to this. Can I just add to this? या जी सर, जी सर। जैसा कि सर ने अभी बताया कि हाइपोग्लाइसीमिया जो है कि शुगर जो डाउन हो जाती है, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम, एक बहुत समस्या है खासकर बुजुर्गों में। और अक्सर ये देखा गया है ये प्रॉब्लम तब होती है जब पेशेंट जो है दवाई ले लेता है या इंसुलिन ले लेता है और वो खाना नहीं खाया उसने किसी भी वजह से, चाहे वो बीमार है या व्रत है, तो उसने मरीज ने खाना नहीं खाया लेकिन इंसुलिन ले लिया। तो प्लीज इस तरह आपने, अगर आप इंसुलिन पर हैं तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो अपना खाना प्लीज मस्त मिस कीजिएगा। और एक चीज और जो ध्यान देनी है वो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभी हम जो यूज कर रहे हैं, दो तरह के इंसुलिन यूज कर रहे हैं। एक ह्यूमन इंसुलिन जो कि आस्ते आस्ते फेज आउट हो रहा है। अगर आप ह्यूमन इंसुलिन यूज कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन यूज कर रहे हैं, तो अपना खाना खाने से करीब 30 मिनट पहले इंसुलिन लेंगे आप ये वाला। लेकिन अगर आप
एनालॉग्स यूज कर रहे हैं जो कि नए टाइप के जो इंसुलिन है, तो आप ये जो इंसुलिन है खाना खाने से तुरंत पहले लेंगे आप ये इंसुलिन अपना। और आप अगर आप किसी वजह से इंसुलिन लेना भूल गए हैं खाना खाने से पहले, तो प्लीज उससे अगर आपको याद आ जाता है खाना खाने वक्त भी, तो आप उसे तुरंत खाना खाने के बाद ले लीजिएगा, ताकि आपकी शुगर्स जो है ज्यादा बढ़ेगा। और दूसरा, जैसे कि सर भी ये बता रहे थे कि जो हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है, उनको अगर थोड़ी बहुत घबराहट हो रही है, पसीने छूट रहे हैं, बेहोशी सी आ रही है, नींद ज्यादा आ रही है, चक्कर से आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, तो प्लीज तुरंत उनकी शुगर चेक कीजिएगा, कहीं उनको शुगर डाउन तो नहीं हो रही है कि है। और जैसा कि सर ने बताया कि नॉर्मली 70 से नीचे जब शुगर चली जाती है उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो इन चीजों का प्लीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में कोई मरीज है जो इंसुलिन या इंसुलिन नहीं भी अगर गोलियां भी ले रहा है, तो उसकी शुगर डाउन हो, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा सर प्लीज। थैंक यू। तो और जैसा बहुत लोगों ने पूछा कि क्या मेरा 45 डिग्रीज पे लगाते हैं, क्या वो सही है? तो जैसा प्रोफेसर लाल ने बताया कि इंसुलिन का इंजेक्शन 90 डिग्री एकदम खड़ा होकर लगाना चाहिए, और उसको एक उंगली और एक अंगूठे पे, हाथ के अंगूठे के अंदर ही यूं पकड़ के दबाना है, पूरे हाथ को नहीं इस्तेमाल करना। तो मेरे ख्याल डॉक्टर साहब आप एक बार प्लीज वो वाली स्लाइड दोबारा दिखा दें, हाँ तो लोगों को बहुत अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगी, इसका बिल्कुल वो इम्पैक्ट ज्यादा होगा। बिल्कुल सर। अभी जो दिखाने जा रहे हैं डॉक्टर साहब, वो ये ये देखिएगा कि वो एक उंगली और एक अंगूठे के बीच में ही दिखाना है, पकड़ना है उसको, तीन चार उंगली और अंगूठे के बीच में नहीं उठाना है। ये नहीं ये करना, गलत ऐसे है नहीं ये करना। वाला। हाँ ये सेकंड फोटो गलत है, ये नहीं करना आपने, पूरा हाथ हाँ इस्तेमाल नहीं करना है आपने। सिर्फ अंगूठा और एक उंगली, इन्हीं दो को यूज करना है आपने। इसी से उठा, इसी से और आपको स्किन को जो उठाना है। हाँ, और जो लोग पेन यूज करते हैं उसको तुरंत पेन को नहीं निकाल लेना। जैसा प्रोफेसर लाल ने बताया अभी कि उसको 5 तक गिन के रखिए, जिससे कि जो धीरे धीरे रिस रही है अंदर इंसुलिन, वो पूरी ये निकल जाए। ऐसा ना हो कि आप तुरंत निकालते, यूं दबाते ही निकाल लें, तो थोड़ी बहुत इंसुलिन अंदर ना जाने की बजाय जिस ट्रैक से आपने पंक्चर किया उस ट्रैक से बाहर निकल के आ जाए। बिल्कुल तो ये बिल्कुल सर। छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसुलिन को और कारगर बनाएंगी, आपके अनुभव को और खुशक बनाएंगी। और it is a dictum in treating diabetes that it is always safer to undercorrect than to overcorrect। बिल्कुल सर। यानी कि अगर कभी आपको कुछ चीज का शक है, संशय है, तो उसको अंडर करेक्ट कीजिए, पूरा करेक्ट मत कीजिए, जिससे कि हाइपोग्लाइसीमिया जाने का चांस नहीं रहेगा। आप उसको अंडर करेक्ट करेंगे तो कम तो हो जाएगी शुगर, डेंजरसली हाई नहीं रहेगी, परंतु डेंजरसली लो भी नहीं जाएगी। बिल्कुल। अगर और आपको जैसे ही आपके सही पास, है, हाँ अगर हाँ आपको डोज जी का जी बोलिए। जरा सा भी कंफ्यूजन है, तो थोड़ा सा उसे कम मात्रा में लें, वो ज्यादा सेफ रहेगा आपके लिए, जैसा सर ने बताया। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक। बाकी लोगों के निजी सवाल हैं जो चैट बॉक्स में आ रहे हैं, हर एक के निजी सवाल का उत्तर देना संभव नहीं है, पर हमने प्रयास किया है कि सवाल पढ़ के हर वो चीज का क्लैरिफाई किया जाए, कि जिससे कि सबके ज्यादा से ज्यादा सवालों का उत्तर दिया जा सके। जैसा कोई पूछ रहे हैं कि आधा घंटा लेते हैं पहले, 20 मिनट लेते हैं पहले, तो प्रोफेसर लाल ने अभी बताया कि अगर आप रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन ले रहे हैं तो आपने 5 मिनट ही पहले लेनी है, जस्ट पहले ही लेनी है खाने के। पर अगर आप एनालॉग ह्यूमन सर, इंसुलिन ले रहे हैं, एनालॉग सर, एनालॉग सर, सर एनालॉग्स। एनालॉग, सॉरी एनालॉग्स, हाँ और अगर आप हाँ ह्यूमन इंसुलिन ले रहे हैं तो वो आपने आधा घंटा पहले लेनी जी। है। ह्यूमन इंसुलिन आजकल फेज आउट हो रही है, हम लोग यूज प्रिस्क्राइब भी नहीं कर रहे, खासकर जो रेगुलर पहले स्टेबल चल रहे हैं उन्हीं को केवल दिया जा रहा है अब, और उनको भी स्विच ओवर करने की टेंडेंसी रहती है ऑन एनालॉग्स, क्योंकि एनालॉग ज्यादा सेफर है, उनका एक्शन ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, एंड वो ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्यादा पहले हाइपो का चांस कम रहता है उसमें, तो वो सेफ रहते हैं। अगर आप अपना इंसुलिन चेंज करना चाहते हैं तो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से डिस्कस करें, अपनी रेडीनेस विलिंगनेस शो करें, तो आई एम श्योर दैट योर treating physician will be more than happy to switch over to the newer analogs। I've just put back the slide just to make the point clear कि अगर आप ह्यूमन इंसुलिन ले रहे हैं, जो ये यहाँ मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो ये आधा घंटा पहले लेंगे आप। और अगर आप इनमें से कोई ले रहे हैं, तो आप तुरंत खाने से पहले लेंगे, इमिडिएटली बिफोर यू।
एनालॉग्स। और कई बार लोगों का ये डाउट रहता है कि जी मैं तो इंसुलिन ले रहा हूँ, फिर भी क्या मेरे को मेटफॉर्मिन या ओरल की दवाई लेनी है? तो उसका, इसके बारे में प्रोफेसर लाल आप कुछ बताना चाहेंगे? सर बिल्कुल कहना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले तो मैं मेटफॉर्मिन के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। हमारी कोशिश ये रहती है कि मरीज बेशक इंसुलिन ले रहे हो या कोई भी दवाई ले रहे हो, उन्हें हम मेटफॉर्मिन देना बिल्कुल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि उनको हम मेटफॉर्मिन दें। ये देखा गया है कि इंटरनेशनली बहुत सारी स्टडीज हुई है और उसमें देखा गया है कि मेटफॉर्मिन के जो फायदे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम फुल डोज ऑफ मेटफॉर्मिन दें, बेशक उसके बाद हम गोलियां देना चाहें या इंसुलिन देना चाहें। तो मेटफॉर्मिन अगर आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको बंद मत कीजिएगा अनलेस कि आपको मेटफॉर्मिन से कोई प्रॉब्लम है। और अगर आप गोलियां ले रहे हैं और उससे शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास एक ऑप्शन है जो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि हम आपको बेड टाइम सोने से पहले लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दे देते हैं, ताकि आपको सिर्फ एक सिंगल इंसुलिन शॉट से ही आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए। अगर उससे नहीं कंट्रोल होती डेफिनेटली फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सिंगल इंजेक्शन से गोलियों के साथ आपकी शुगर कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, और जैसा कि आप लोगों को पता ही है और प्रोफेसर लाल ने बताया भी कि इंसुलिन से डरने की आवश्यकता नहीं है। इंसुलिन ऐसा वरदान है जो आपके वाइटल ऑर्गन्स को बचा के रखेगा बहुत ज्यादा देर तक। जो चीज 5 साल में हो जाएगी बिना इंसुलिन के, तो हो सकता है इंसुलिन अगर समय से शुरू कर दी जाए तो वो 10, 15, 20 साल तक भी ना हो। तो इंसुलिन शुरू करने का, इंसुलिन को टालिए नहीं। अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको इंसुलिन की आवश्यकता है, तो उस पर कृपया ध्यान दें। प्लीज बी केयरफुल एंड बी रेडी एंड विलिंग to accept the insulin, because it is in your favor that the insulin will work. And please do not shy away from insulin if the treating doctor tells that you insulin is a must in your case. So बिल्कुल सर। it is only in your best interest to preserve the vital organ function. And सब डायबिटिक्स को एटलीस्ट साल में एक बार अपना आई चेकअप भी कराना चाहिए। आई थिंक इट इज एन अप्रोप्रिएट फोरम टू टेल यू दैट ऑल्सो। अपना आई चेकअप साल में एक बार एटलीस्ट अपने बर्थडे वाले मंथ में तो जरूर करा लें, क्योंकि बर्थडे तो हर साल आता ही आता है, सबको याद भी रहता है। तो मैं अपने सभी मरीजों को ये जरूर बताता हूँ कि अपने बर्थडे वाले मंथ में आई चेकअप जरूर करा लें। तो ये, बाकी तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा हाँ सब कुछ हाँ, अपने 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 आप को एक छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं अपने बर्थडे पर। जी जी। हाँ, एक चिंता का विषय और है इंसुलिन जी थेरेपी के साथ, कि अक्सर इससे भूख ज्यादा लगती है और भूख ज्यादा लगने से वेट बढ़ता है। पर इससे इंसुलिन बेटर कंट्रोल होती है। तो ये एक तरह का दो धारी तलवार है, जिससे कि कुछ इसके अनवांटेड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स तो नहीं कहूंगा, अनवांटेड हाँ इफेक्ट्स हैं जो जी है। बिल्कुल जो एक वेट बढ़ना, एक बिल्कुल। थोड़ा सा जो है भूख ज्यादा लगना। तो अच्छा, ये एक जिस, पहले तो मैं, हाँ हाँ पहले तो मैं ये क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि शायद इंसुलिन ना लेने का भी एक कई बार बहाना हो जाता है वेट बढ़ना, लेकिन अक्सर अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर दवाइयां जो हमारे पास है इस टाइम जो हम शुगर के लिए लेते हैं उनसे भी वजन बढ़ता है। तो आई थिंक ये बहुत क्लेरिफाई करना जरूरी है, सिर्फ इंसुलिन से नहीं गोलियों से भी वजन बढ़ता है। काफी कॉमन दवाइयां जो है, जो मैं नाम नहीं ले रहा, जो यूज होती है उससे भी वजन बढ़ता है। तो ये जो मिथ है, या जो मिथ ये नहीं है कि सिर्फ इंसुलिन से वजन बढ़ता है, डेफिनेटली इंसुलिन से वजन बढ़ता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा है। तो एक तरफ आपको शुगर कंट्रोल करनी है और एक तरफ थोड़ा सा वजन बढ़ रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बेनिफिट जो है वो ज्यादा है। और अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो जो थोड़ा बहुत वजन बढ़ना है इंसुलिन से, उसको आप टेक केयर कर सकते जी हाँ, बिल्कुल सही हैं। बोला डॉक्टर लाल ने। जिस तरह देखिए, सब्जी चाहे एक कटोरी बनानी हो, चाहे पूरा पतीला बनाना हो, मसाले उसके अनुपात में ही डलेंगे, कितनी मात्रा बनानी है। उसी तरह से अगर आपको शुगर को कंट्रोल करना है, तो उसमें हो सकता है आपको सैर का, व्यायाम का, डाइट कंट्रोल का और दवाइयों का, सबका सहारा लेना पड़े। अब वो किसको कितना लेना पड़ेगा डिपेंड करता है कि उसके निजी परिस्थितियां क्या हैं, उसके निजी सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उसकी बॉडी किस तरह से मेडिसिन को रिएक्ट करती है, उसकी जेनेटिक्स क्या है, उसका वेट क्या है, उसका लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, एक्टिव है। तो इसलिए डॉक्टर, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया था कि
एक तरह का नुस्खा सबके लिए, देयर इज नो वन treatment for बिल्कुल all that fits all. I think it has to be, the treatment has to be customized to your own circumstances and your own reaction to the medicines and हाँ बिल्कुल, responsibility. अपने डॉक्टर साहब से बात करके और उनकी सुझाव से ही और सलाह मशवरा से ही इंसुलिन लीजिएगा। अब जैसे लोगों ने पूछा है चैट बॉक्स में कि व्हाट आर द मिनिमम एक्सरसाइज टू कंट्रोल डायबिटिक्स। देखिए नॉर्मली ये देखा हाँ गया है कि जो हम रिकमेंडेशन देते हैं वो कहते हैं कि 30 से 40 मिनट अगर आप वॉक कर लेते हैं, ब्रिस्क वॉक, हफ्ते में 4 बार भी अगर आप कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट है। अगर आप रोज कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 4 दिन भी कर लेते हैं हफ्ते में 30 से 40 मिनट, दैट शुड बी इनफ, वो सफिशिएंट है। और आजकल तो ये भी माना गया है कि आप अगर जितना भी करें एक्सरसाइज, चाहे कम करें, चाहे 20 मिनट करें, चाहे 10 मिनट, जितना, समथिंग इज बेटर देन हाँ नथिंग। वो तो बिल्कुल है, अगर आप बिल्कुल ही नहीं कर रहे तो कुछ हाँ, कुछ तो जो कुछ भी जितना कर भी रहे हैं वो करें, बिल्कुल। हरकत करें, हाँ हाँ, उतना आपके लिए बेहतर ही बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं नहीं बहुत शुक्रिया, ज्ञानवर्धक रहा। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। और बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बातचीत और मुलाकात होती है और आप सबसे बहुत डिस्कशन होता है और बहुत अच्छा लगता है। हर मुलाकात का हम इंतजार करते हैं आप सबसे बात करने के लिए। यदि श्रोताओं का और कोई प्रश्न नहीं है तो अगर कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में डालें। जरूर, ये लोग पूछ रहे हैं, एक चैट बॉक्स में प्रश्न आया है डॉक्टर साहब, जाते जाते इसका हाँ आप बिल्कुल टिप्पणी बिल्कुल देते जाएं। बिल्कुल। हाँ, कि कोविड के बाद इनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है और इंसुलिन इनकी लगभग 4 गुना बढ़ गई है। तो क्या इस पे कुछ आप टिप्पणी देना ये चाहेंगे? ये देखा गया है कि हालांकि ऐसे कोई रिसर्च में ऐसा कुछ आया नहीं, लेकिन हाँ हमारे अपनी प्रैक्टिस में भी या ओपीडी में भी हमने देखा है कि पेशेंट्स जो पहले कंट्रोल थे कोविड से पहले, काफी हद तक शुगर्स उनकी अनकंट्रोल हो रही है। तो ये कोविड का असर है या नहीं ये तो अभी बहुत जल्दी है कहना, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता आपको। बट डेफिनेटली आप सबसे पहले ये देखिएगा, अगर आपकी शुगर्स नहीं कंट्रोल हो रही, सबसे पहले आप इंसुलिन ठीक तरीके से ले रहे हैं नहीं ले रहे, आप इंसुलिन सही साइट पे ले रहे हैं नहीं ले रहे, उसी जगह पे बार बार तो नहीं ले रहे हैं, आपका इंसुलिन ठीक है या नहीं, एक्सपायर्ड तो नहीं है। तो सबसे पहले इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिएगा। अगर आप फिर भी नहीं हो पा रहा तो आई थिंक इसके लिए फिर आपको जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन है, और अगर आप दिल्ली में है तो आप हमारे पास हमसे आके मिलिएगा। वी आर अवेलेबल एट CGHS सफदरजंग हॉस्पिटल। तो आप, बिकॉज इट इज अ पर्सनल क्वेश्चन इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो प्लीज कम टू अस एट सफदरजंग CGHS मेडिसिन ओपीडी। हम देखेंगे कि क्यों शुगर आपकी कंट्रोल नहीं हो रही है, एंड विल टेक केयर ऑफ इट। और भी एक सवाल आया है कि किसी को न्यूरोपैथी है, किसी को थायराइड है, जी तो भाई इसके लिए तो आपको आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट प्लीज, if you control your sugars well, at least it will stop, you can delay the progress of it. बिल्कुल How बिल्कुल। far it is reversible is a question of time. I don't want to discuss it here, but I नो think if you द बेस्ट थिंग इज control टू it कंट्रोल well, योर yeah. बेस्ट थिंग इज टू कंट्रोल योर शुगर्स। तो एटलीस्ट जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वी कैन स्लो द प्रोग्रेशन, मे बी वी कैन नॉट स्टॉप इट बट वी कैन स्लो इट। Thank you very much, sir. थैंक यू सो मच, आप ऑलवेज सबको अ आने आने वाले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और भारत के ओलंपिक में गोल्ड मेडल और इतने सारे और कांस्य और रजत पदक लेने के लिए भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन उन खिलाड़ियों का। और स्वस्थ रहें, वैक्सीनेटेड रहें, और अपने आप को सेफ रखें। जरूरत पड़ने पे ही बाहर जाएं। अभी पूरी तरह से कोविड काफी हद तक कंट्रोल हो गया है, परंतु गया नहीं है। जिनका वैक्सीन ड्यू है वो अपना वैक्सीन लगवा लें। धन्यवाद, ध्यान रखें। चलिए, थैंक यू। नमस्कार। हैप्पी आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बधाइयाँ बहुत बहुत, और आपसे फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।